Okay, so today's आज हम लोग बेसिकली दो टॉपिक पढ़ेंगे. वन इज कॉल्ड MWR and the second one is called new magnets. MWR and new magnets. MWR is microwave resonators, and new magnet is micro scale magnets. Okay, so let us start with the first one, MWR. So यहाँ पे it is basically comprised of two things. One is the microwave and one is resonators. Microwave मतलब it's an electromagnetic wave, EM wave. ठीक है, मोबाइल फोन्स जो यूज करते हैं हम लोग, the transmission and receiving of those signals are through microwave. So it's 300 megahertz to 300 gigahertz. On an average, हम लोग बोल सकते हैं कि इस रेंज पे microwave होता है. So now the second part is resonators. तो लोगों ने ट्यूनिंग फॉर्क वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा प्लस टू में, या फिर फॉर एग्जांपल गिटार में क्या होता है, देयर आर स्टैंडिंग वेव्स, राइट. Standing waves, that means somehow we are trapping the waves between the two walls. इसको स्टैंडिंग वेव्स बोलते हैं ना. देयर रीजन इज लोकलाइज्ड स्टैंडिंग वेव्स. तो ये जो वॉल्स है यहाँ जहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं नोड्स. स्टैंडिंग वेव्स गिटार में या फिर किसी ना. हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग गिटार में तो मैकेनिकल वेव्स है, राइट. यहाँ में we will be doing the same thing but with electromagnetic waves. So if we are using electromagnetic wave, तो यहाँ पे जो oscillate करेगा between the two walls, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑसिलेट करेगा, राइट. दूसरा है एक मैग्नेटिक कंपोनेंट, उनका बोला एक मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑसिलेट करेगा, दूसरा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, एंड दे विल ऑसिलेट विद अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी. इसको अपन बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, F0. ठीक है. Now the question is, why do we require such type of microwave resonators? Basically it is used जो एंटीना होते हैं हमारे, या फिर any sort of sensing. All these things require change in the frequency, delta f. A change in the frequency is associated with the dimension of the system. ये जो सिस्टम है जिसके बीच वेव्स ऑसिलेट हो रहा है, it can be either cylindrical, ऐसे, or it can be rectangular. इसके बीच ऑसिलेट करेगा. तो the parameters which define a cylindrical structure, that is the cylindrical polar coordinates, क्या क्या होता है,
R phi and Z, और ये दिस इज X Y and Z. X Y Z तो पता है तुम लोगों को, सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में. सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्यों बोलते हैं R phi and Z? बिकॉज यहाँ पे there is one R, ठीक है, मान लो from this is your, so ये जो R घूमेगा ऐसे, इसको बोलते हैं एजीमुथल रेडियल कंपोनेंट और एक्सियल. ये तीनों कंपोनेंट जब एक साथ वेरी करेंगे, when it will move and it will move like this, then it will form a cylinder. A cylinder form. That is why it is called a cylindrical polar coordinates. अच्छा, now ये जो standing waves जो मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, एक मैग्नेटिक कंपोनेंट है, तो there are certain components which are called TE and TM. TE and TM. TE और TM का मतलब क्या हुआ? TE का मतलब है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक, और TM का मतलब है ट्रांसवर्स इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है, मतलब द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है, मीन्स दैट नो E in the direction of propagation. Similarly, no H in the direction. Now, as I said, कि इसका जो डायमेंशन है, मान लो A, B and T, लेंथ, और मान लो M, N and P, ये तीनों इसके ये can be either 0 or 1. Zero or 1. These are the modes. इसका मतलब क्या है, मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ. मान लो you have in the TE mode मैं बोल रहा हूँ कि M, N and P value they are 1, 0, 1. ठीक है, इसका मतलब क्या है? The variation is in the x-axis. There is no variation in the y-axis and there is variation in the z-axis. इसका ये मतलब है, like the crystal planes पर x और z में variation. या फिर इसको तुम लोग बोल सकते हो if it is a cylindrical, if it is a rectangular system. एक रेक्टेंगुलर सिस्टम है तो x, y और z तीन नंबर्स को नोट करेगा. नोट मतलब क्या है? नोट मतलब बेसिकली ये बात, मतलब कहाँ पे आके मेरे धक्का लग रहा है, where the wave is coming and getting reflected. ठीक है, तो if generalize इसको करना चाहो तो you can actually generalize it by this means.
is the length of the L. So usually L is equal to m lambda by 2, where L is the dimension or length of the system. So length or dimension. ठीक है, ये अगर एक सिस्टम है तो देयर इज वन, एक डायमेंशन है, लेकिन अगर 3 डायमेंशन है जैसे कि सिलेंडर के केस में, तो इंस्टेड ऑफ n यू आर हैविंग m n and p, राइट। सो ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ये दिस विल बी डिफरेंट बेस्ड अपॉन द डायमेंशन। सो बेस्ड अपॉन द डायमेंशन ये इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है f m n p इक्वल टू, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड कितना होता है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट का स्पीड c/2। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट? इट इज सिंपली m by a whole square plus n by a whole square plus e by, ये इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो बेस्ड अपॉन कौन सा मोड है, अकॉर्डिंगली वी कैन पुट द वैल्यूज एंड वी कैन फाइंड आउट कि इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना है, इसका क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होता है। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज, हम लोग एक साथ ये तो अलग अलग हम लोगों ने डिफाइन किया, एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक, एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक, लेकिन सिंस इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, both of them are combined. So combined करके क्या होता है? यहाँ पर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव TEM, ठीक है। नाउ यूजुअली जो ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं, जो वेव गाइड्स होते हैं, जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, यूजुअली ये सिलेंड्रिकल शेप के ही होते हैं, दे आर नॉट रेक्टेंगुलर, मेनली बोलते हैं हम लोग like the shape of this या फिर even if you are traveling the wave in a cylindrical body, इसके साथ associated एक coaxial element हम लोग डालते हैं, इसको बोलते हैं coaxial flow। coaxial flow stub, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कैसे आता है लाइट, उसी तरह से यहाँ पर भी आता है। Now the question is, यहाँ पे you have a TEM, you have a transverse electromagnetic. So if it is electromagnetic wave, यहाँ पे electromagnetic, Maxwell's electromagnetic laws लोगों ने पढ़ा है, सारे यहाँ पे एप्लीकेबल होंगी। Maxwell's electromagnetic relation, याद है? Maxwell electromagnetic relation वेरी सिंपल, यू बहुत आज क्लास के बाद कभी भूलोगे नहीं, वेरी सिंपल। डेल डॉट ई B, ठीक है, डेल क्रॉस सी विचार, इसका आंसर तुमको लिखना है। सेकंड वाले का हम लोग को सबको पता होना चाहिए, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, नंबर 2, सो इट शुड बी इक्वल टू
ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। Faraday's law, oscillating electromagnetic field produces EMF. EMF होता है? ठीक है? This is electrostatics, Gauss's law of electrostatics. उसमें क्या होना चाहिए? You should have a charge density. लास्ट वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लास्ट वाला इसमें बोलता है इट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट करंट्स। एक है कंडक्शन करंट, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब व्हेन the system shifts so that there is a change in the electric field. So it is equal to mu 0 J. J is the conduction current density plus mu 0 epsilon 0. ठीक है, ये चार लॉज हैं। तो अभी हम लोग will try to understand how these laws will behave inside a coaxial cable. Coaxial cable which is having a TEM. What is a TEM? Transmission. What is TM? ये वही मैंने कहा है। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, मतलब both of them are present. अच्छा, now tell me इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोपगेट करता है? स्ट्रेट, ठीक है ना? और मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोपगेट करता है? सर्कुलर। तो अगर मैं क्रॉस सेक्शनल इस कोएक्सियल केबल को देखता हूँ फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन, ऐसे बीच में एक होल है क्रॉस सेक्शन, तो जो कंबाइंड मेरा TM is actually a combination of TE plus TM. ये कैसे होगा? ये दिखेगा कैसे? Any guess? Magnetic field will be circular in nature and electric field will be radial in nature. So it's very simple. ये होगा तुम्हारा electric field. ऐसे करते हैं। ठीक है, और TM कैसे होगा? मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर। अच्छा, नाउ टेल मी व्हाट विल बी द लॉज। कौन सा वाला लॉ यहाँ पे चेंज होगा? विच लॉ विल चेंज? चार में से एक लॉ यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा और बाकी तीनों लॉज सेम रहेंगे। बोल सकते हो कौन सा वाला लॉ चेंज? मतलब RHS चेंज होगा। राइट हैंड साइड वाला कोई एक लॉ यहाँ पे चेंज होगा नहीं। यहाँ पे कोई चार्ज है? इज देयर एनी चार्ज inside the cable? Inside the cable कोई accumulation of charge हो रहा है? What is rho? Density one बोल रहे हैं। What is rho? Rho is charge density है, but
fix the charge. So since there is no accumulation of charge, this will be equal to 0 inside the cable. So only thing that will change is the first law. ये हो जाएगा 0, बाकी के सारे तो सेम है. Everything else will be same. ठीक है? Okay, so that brings us to the end of the first part. That is back to residence. इसका जो एंटेनास वगैरह में ऑसिलेशंस में इसका इनपुट. दूसरा पार्ट इज अगेन रिलेटेड टू मैग्नेटिक मटेरियल्स. ये थोड़ा सा डिफरेंट है. इट इज कॉल्ड माइक्रोमैग्नेट्स. माइक्रोमैग्नेट्स से क्या समझ में आ रहा है? मैग्नेट स्केल हैज बीन रिड्यूस्ड. तो मैग्नेटिक मटेरियल अगर हम बोले तो पहला चीज दिमाग में क्या आता है? आयरन, कोबाल्ट, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. फेरोमैग्नेटिक में हम लोग कौन से मटेरियल डालते हैं? आयरन, कोबाल्ट. इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स. व्हाई डू वी कॉल इट इज सॉफ्ट? और एक होता है हार्ड फेरोमैग्नेट्स. हार्ड फेरोमैग्नेट्स मतलब इट रिटेन्स इट्स मैग्नेटाइजेशन, परमानेंट मैग्नेटाइजेशन. ट्रांसफर मोड्स में जो लगते हैं यहाँ पे बेसिकली हम लोग यहाँ पे जैसे मेटल्स हम लोगों ने यूज़ किया है. यहाँ पे यूज सम एलॉयज लाइक ND, FeB एलॉयज. उसके बाद SM. ये सारे जो एलॉयज है ये परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के काम में आते हैं. और जो ये सारे हैं स्विचिंग प्रॉब्लम्स. और एक होता है परमानंद. जैसे होता है ना परमानंद, परम सुख, वैसे ही होता है परम एलॉय, कर्म. ठीक है? परम एलॉय बेसिकली निकल और आयरन का होता है. ये इट इज वेरी यूनिक एलॉय परम एलॉय. ये 1914 में इट वाज डिस्कवर्ड इन बेल लैब्स. इसकी खास बात ये है कि यूजुअली इफ यू कंपेयर अ सॉफ्ट मैग्नेट विद अ हार्ड मैग्नेट, तो इसका जो MH लूप इज वेरी हाई. MH लूप of a hard magnet is much greater than MH loop of a soft magnet. Magnetic loss. अच्छा, मुझे अगर MH को हार्ड बड़ा बनाना है तो आई कैन, दो चीज़ें यहाँ पे काम आती है. सपोज ये जो हिस्टैरिसीस स्लॉट है इसको मुझको बड़ा बनाना है. ND मतलब नायोबियम नहीं है. नायोबियम ND है कि ND है, जस्ट चेक. ये ND है. ये कोई रेयर, इसको चेक कर लेना है. जस्ट चेक करके देखो तो ND. ये तो समेरियम ये है. दिस इज समेरियम, दिस इज आयरन, दिस इज प्लैटिनम. तो बेसिकली ये कोई ऐसा कोई एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक नंबर बहुत हाई होगा. इस ND को चेक करो एक बार. क्या है ND? कितना एटॉमिक नंबर कितना? हाँ, भाई
वेरी हाई एटॉमिक नंबर। अच्छा, ये हाई एटॉमिक नंबर के पीछे एक कारण है कि जो हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन पता है मैग्नेटिक फील्ड, हैमिल्टोनियन बेसिकली कंसिडर्ड अ परमानेंट मैग्नेट, इट इज इक्वल टू HEXC, what is exchange Hamilton, HEXC is equal to minus J summation I less than J SI J, जो exchange bias मतलब not exchange bias, जो exchange integral के ऊपर बेस्ड, मतलब एक स्पिन दूसरे स्पिन को रीइंफोर्स करता है। इसके साथ और एक जो हैमिल्टोनियन ऐड होता है दैट इज स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। सो हर एक एलॉय में देखोगे देयर इज वन एलिमेंट इसका कि एटॉमिक नंबर हाई है। एटॉमिक नंबर हाई होने का कारण यही है कि फॉर दोज एलिमेंट्स वेयर एटॉमिक नंबर इज हाई, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इज वेरी मच प्रोमिनेंट। इसलिए एलॉयज में मतलब निकल और इसका भी कर सकता हूँ, लेकिन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ पुटिंग अ वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड हियर। अच्छा, सो व्हाट आई वाज टेलिंग इज दैट इफ यू वांट लाइक टू इंक्रीज द एरिया और द लॉस, तुमको दो चीज़ करना पड़ेगा, यू नीड टू इंक्रीज इन विड्थ और इट शुड इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, इससे बड़ा अगर मुझको लॉस करना है ये इतना, तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया, मैंने यहाँ पे इस डायरेक्शन पे आई हैव इंक्रीज्ड इट, आई हैव इंक्रीज्ड इन दिस डायरेक्शन। ये जो इस डायरेक्शन में मैंने इंक्रीज किया है इसका मतलब मैंने विड्थ पे इंक्रीज किया। सो बेसिकली आई हैव इंक्रीज्ड द कोएफिशिएंट इन सी, है ना, एंड इफ आई हैव इंक्रीज्ड द प्लॉट इन दिस डायरेक्शन आई हैव इंक्रीज्ड द रिटेंटिविटी MR। परमाणु एलॉय की खास बात यह है कि ये रिटेंटिविटी इसकी लो है, पर सॉरी कोर्सिविटी इसकी लो है, बट इसका जो रिटेंटिविटी इसकी हाई, रिटेंटिविटी इज हाई एंड कोर्सिविटी इज लो। सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ऐसे शार्प होगा, रिटेंटिविटी हाई होगा, बट कोर्सिविटी विल बी वेरी लेस, विड्थ कम होगा, हाइट ज़्यादा होगा। There is another type of alloy जिसको बोलते हैं स्पायॉन्स। स्पायॉन्स, स्पायॉन्स का फुल फॉर्म है सुपर पैरामैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड नैनोपार्टिकल्स। तो बेसिकली जो माइक्रो मैग्नेट्स होते हैं, इट्स नॉट दैट कि मैं एक मैग्नेट मैंने लिया और मैं उसको काटता गया until it has got a lower size. माइक्रो मैग्नेट करने के लिए what I create a array of magnetic स्टील में आयरन कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आयरन कार्बन डायग्राम में कौन सा फेज को बोल सकते हैं मैग्नेटिक अल्फा करेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए स्टेनलेस स्टील कभी कभी हम लोग जो खरीदने जाते हैं मार्केट में एक मैग्नेट लेके जाते हैं, तो स्टेनलेस शुड बी एन ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील। अगर चिपकता है मैग्नेट दैट मीन्स इट हैज गॉट सम फेराइट फ्रैक्शन, तो उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। Now coming to the array formation. Why are we interested in magnetic micromagnets? Because इसका बहुत सारा application है, but the most important applications in the current text is biomedical.
बायोमेडिकल। एमआरआई जो होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई में जो कॉन्ट्रास्ट होता है, अलग अलग कॉन्ट्रास्ट होते हैं ना, कलर्स होते हैं, कैसे हम लोग दैट इज थ्रू दिस बायोन्स, मैग्नेटिक नैनोपार्टिकल्स। उसी तरह से देयर इज समथिंग कॉल्ड कार्डियोस्पाइनल फ्लूइड, CFT। कार्डियोस्पाइनल फ्लूइड है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ, इट एक्ट्स एज अ कुशन। सो वी हैव अ ब्रेन लाइक दिस एंड वी हैव अ स्पाइनल कॉर्ड लाइक दिस। तो इसके चारों तरफ जो कुशन एक्ट करता है, दिस कुशन, इसको हम लोग बोलते हैं CFT। और there are certain biological species, जो biomedical बोल रहे हैं, we are only focusing only on those species which species मतलब it consists of lot of things, cells हो गया, organ हो गया, which are magnetically sensitive। उसमें से एक ये CFD भी हो गया। By studying CFD we can detect lot of diseases। अच्छा, ये जो बायोमेडिकल डिटेक्शन है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोमेडिकल डिटेक्शन। एक है, एक को बोलते हैं इन वीवो, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स वीवो। इन वीवो का मतलब है वी आर ट्रीटिंग द बायोलॉजिकल स्पीशीज फ्रॉम द आउटसाइड। बाहर से हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, जिससे कि इनसाइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बॉडी कुछ काम होगा, जैसे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। और एक्स वीवो का मतलब है वी आर टेकिंग आउट द बायोलॉजिकल स्पीशीज फ्रॉम द बॉडी एंड एक्सपेरिमेंटिंग इन द लैब, टेकिंग आउट थोड़ा सा क्लियर होगा। नाउ अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, वी आर कंट्रोलिंग द बायोलॉजिकल स्पीशीज। कंट्रोल किस बेसिस पे कर रहे हैं? कंट्रोल हम लोग बेसिस पे कर रहे हैं माइक्रोमैग्नेट के बेसिस पे। माइक्रोमैग्नेट अगर होता है, इससे क्या होता है, देयर इज अ ग्रेडियंट, साइज अगर छोटा हो गया, उसका जो ग्रेडियंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ये हाई होगा। ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब पता है ना तुम लोगों को, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो इफ आई एक्सप्रेस दिस आई कैन राइट एज by इसका यूनिट क्या होगा? इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इन टेस्ला एंड डायमेंशन इज इन मीटर से, इसका यूनिट क्या होगा? टेस्ला पर मीटर। ठीक है, तो माइक्रो स्केल रिडक्शन ऑफ द मैग्नेट, इट प्रोड्यूसेस अ वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड which is of the order of 10 to the power 6
टेस्ला वाट, इतना हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो इसलिए क्या होता है कि नियर बाई आई कैन वेरी मच आई कैन मैनिपुलेट। अच्छा, देयर इज वन मोर पार्ट ऑफ इट, जो माइक्रोमैग्नेट मैंने जो जनरेट किया जैसे मैंने कहा है, इट इज़ नॉट दैट इट इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एरे। एरे मतलब छोटे छोटे मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स होते हैं जिनका कंबाइंड इफेक्ट होता है ऑन द बायोलॉजिकल स्पीशीज। अच्छा, यहाँ से एक तो मैग्नेट मेरे पास है मान लो, फिर मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल है, उसको ऐसा अरे बनाना है, तो फैब्रिकेशन उसके लिए ज़रूरत है, यानी कि फैब्रिकेट उसका अरे बनाना पड़ेगा। सो देयर इज अ फैब्रिकेशन पार्ट, फैब्रिकेशन एंड डिज़ाइन पार्ट, application and design part में there are three techniques that you use, that usually is used. One is called TNT, one is called TOPO, पहले का नाम है थर्मल मैग्नेटिक पैटर्न। TMP स्टैंड्स फॉर थर्मल मैग्नेटिक पैटर्न। दूसरा है टोपोलॉजिकल लिथोग्राफी। और तीसरा है माइक्रो मैग्नेटिक इमेजिंग। तो मैं बड़ा ब्रीफ एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला वाला है थर्मल मैग्नेटिक पैटर्न, मतलब तुम्हारे पास एक मैग्नेट है ऑलरेडी, तुमको इसमें से छोटा छोटा अरे बनाना है, तो कैसे करोगे? यू विल यूज लेजर पल्स, शॉर्ट लेजर पल्स। पल्स यूज करके तुम क्या करोगे, सर्टेन एरियाज में विल अप्लाई द पल्स। मान लो यहाँ अप्लाई होगा, और पल्स यूज करके तुम क्या करो, टेम्परेचर इसका इंक्रीज करो। यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ दीज रीजन्स। शॉर्ट लोकलाइज्ड रीजन में उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। कितना इंक्रीज कर रहे हो? मोर देन द क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर चला गया तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। तो इन सब रीजन्स में मेरी मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइज्ड हो गया है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज आई फ्रीज इट। क्वेंचिंग की तरह मैं उसको बहुत जल्दी फ्रीज कर देता हूँ। व्हाई डू आई फ्रीज इट? बिकॉज आई वुड लाइक टू रिटेन द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो लेफ्ट ओवर रीजन्स है, ये और भी ज़्यादा डेंस होता है। इतना खाली है तो मैंने ड्रॉ किया। जो लेफ्ट ओवर रीजन्स है वहाँ पे ये वाले जो रीजन्स जहाँ पे वाइट डॉट्स नहीं है, दीज आर द रीजन्स जो कि मैग्नेटिक एरे में। समझ आ रहा है? मतलब मैंने ये ब्लैक रीजन्स को मैं अगर अलग से ड्रॉ करूँ तो दिस फॉर्म्स मैग्नेटिक। दिस इज वन वे। दूसरा तरीका है टोपोलॉजिकल लिथोग्राफी। लिथोग्राफी आई थिंक यू नो व्हाट इज द लिथोग्राफी।
एचिंग करके तो मैक्रो सर्किट्स, मैक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाया जाता है, आयन बीम यूज़ करके, एचिंग करके, फोटो रेजिस्ट यूज़ करके, दैट इज टू मेक अ पैटर्न स्ट्रक्चर. अच्छा, व्हाट इज टोपोलॉजिकल? टोपोलॉजिकल वो वाला एग्जाम्पल याद है? टोपोलॉजी एक्सप्लेन करते वक्त मैंने एक कप और एक डोनट का जिक्र किया था. तो टोपोलॉजी मीन्स इट इज बेसिकली मैथमेटिकल टर्म where the structure possesses a permanent shape. जहाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो कप के हैंडल के बीच का जो होल है, ये वाला बीच, और ये डोनट के बीच का जो होल है, इट इज इंटैक्ट, ये कभी चेंज नहीं होगा. सो देयर इज अ स्ट्रक्चर को बोलते हैं जेनस, मैथमेटिक्स के टर्म्स में बोलते हैं जेनस. इट हैज अबाउट अ जेनस इज अ होल. इसका मतलब कि यू नीड टू फर्स्ट क्रिएट अ स्ट्रक्चर. तो वही होता है, पहले लिथोग्राफी यूज करके नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में मैं मान लो एक ऐसा एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता, कुछ भी हो सकता है. हो गया. नेक्स्ट आई अप्लाई द मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स की स्ट्रक्चर. तो ऑलरेडी मैंने जो फ्रेमिंग कर रखा था उसके ऊपर मैंने मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स डाल दिया, फिर फॉर्म से पैटर्न. दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट. और लास्ट वाला जो मेथड है, इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, वी हैव मैग्नेटिक फिल्म्स. मैग्नेटिक फिल्म्स रहता है और उस मैग्नेटिक फिल्म्स का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड रहता है. ठीक है. नाउ इन दिस केस वी अगेन लेट द मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स कम. यहाँ नैनो पार्टिकल्स आ जाते हैं ऐसे, और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अप्लाई करते हैं. सो देयर इज अ ओके नो सो ऑलरेडी देयर इज एन एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फिल्म से आ रहा है, और यहाँ पे मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं. तो द एक्सटर्नल फील्ड, इसको स्ट्रे फील्ड भी बोलते हैं. स्ट्रे फील्ड एक्ट्स इंटरैक्ट्स विद मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स, और ये जाके जमा होता है एक पॉलीमर सबस्ट्रेट, पॉलीमर मैट्रिक्स, and it forms a pattern. So usually we use polymer matrix PDMS, polydimethyl siloxane, ट्रांसपेरेंट पॉलीमर होता है. सो गेट अ शेप, एक ट्रांसपेरेंट ऐसे फ्लेक्सिबल फिल्म की तरह होता है, और यहाँ पे ऐसे करके तुम्हारा पैटर्न्स बनेगा. ये इसका एग्जाम्पल है. अच्छा, ओके. इसके अलावा देयर इज वन अनदर मेथड जो कि न्यूली डेवलप हुआ है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक प्रोब इन वीवो एक्सपेरिमेंट. ये हमारे यहाँ पे जैसे CSIR है ना, वी हैव CSIR इन इंडिया. यूरोप में देयर इज CNRS. CNRS and University of J. Fourier in Grenoble, France. इन्होंने ऐसा एक डिवाइस बनाया है, इसको बोलते हैं मैकपी
here basically it is used to detect the CS. अच्छा, इसके अलावा there is one more way where the patterned magnetic nanoparticle array has been used. It is used in the incubation. इस वर्ड का मतलब पता है? Incubation मतलब to store it with certain amount of pressure temperature. तो एक biological species होता है HEK293, which is fluorescent in nature. So from its fluorescent property, we determine HEK. What is an HEK? HEK is nothing but a human embryonic kidney cell. इसको हम लोग एक्चुअली वी कैन स्टोर इट. अच्छा, ये जो डेल्टा H या डेल्टा B जो ग्रेडियंट हुआ है, ड्यू टू दिस ग्रेडियंट देयर इज अ फोर्स व्हिच एक्ट्स सराउंडिंग द मैक्रोमैग्नेट. फोर्स एक्सप्रेशन है, ये सिंपल एक्सप्रेशन V x means resistivity chi mu0 m ये इट इज बेस्ड अपॉन ये वाला एक्सप्रेशन लोग सारे इस पे यूज करें तो ये मिल जाएगा. M is the magnetic dipole, V is the volume, and M is the magnetization. सारे पे यहाँ. So this is the force that is acting on the surrounding magnetic body. So हम लोग देख सकते हैं कि the control. So if it is a array and if it is a sharp edge array system है,